based on last class topic and previous classes topic, and then we'll start current electricity also today only. 4 microfarad capacitor is charged to 80 volt. Another 6 microfarad is charged to 30 volt. When they are connected together, energy lost. तो जब ये मेंशन नहीं है कि दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट किया है या नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट किया, then we assume it to be the common. We assume it to be the common, like two positives are connected together. What is the answer here? 12 by 10 into 2500. Rudransh, three 3 millijoule, approximately 3 point. Okay, sorry. This is not asking the total energy. This is asking the energy lost by 4 microfarad. This is the total energy lost. This was total heat produced or total energy loss. हमें calculate करना है heat energy lost by 4 microfarad capacitor only. So 4 microfarad capacitor पे initial charge और final charge. 4 microfarad capacitor पे initial charge कितना था? Because it was charged by a battery of 80 volt. Initial energy of 4 microfarad capacitor by using the formula half CV square. और जब दोनों charges आपस में settle down हो जाते हैं, their final potential become equal. Then we calculated the formula for common potential also. Common potential कितना था? Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2, which is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. फॉर्मूला याद नहीं हो, आप नोट्स रेफर कर सकते हो. एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व. दो कैपेसिटर को हमने अलग से चार्ज किया था, देन वी सेपरेट व्हेन वी कनेक्ट देम टुगेदर, द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड, इन दैट प्रोसेस एनर्जी विल बी लॉस्ट. बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी नहीं पूछी है, इस क्वेश्चन में पूछा है केवल एनर्जी लॉस्ट बाय 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. You have to read the question carefully. इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे माइनस इसकी फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे, दैट विल बी एनर्जी लॉस. सो हाफ C है 4 माइक्रोफैराड, इनिशियली इट वाज 80 स्क्वायर. फाइनल पोटेंशियल इज C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. 320 plus 180 divided by 10, that becomes 50, minus half into 4 into 50 square. Energy initial half C into V1 square, and final energy is half C1 into V dash square. समझ आ गया ना दोनों में डिफरेंस क्या है जो हम पहले कर रहे थे? द डिफरेंस इज दैट हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर होल सिस्टम एनर्जी. दिस इज आस्किंग ओनली फॉर 4 microfarad. So the answer would be how much? 7.8 millijoule. 7.8 millijoule is the energy lost by first capacitor only. Understood? Dhruv? Dhruv is not here. Very nice. Hmm.
Okay. Next we will use ये स्विच वाला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is number 2. 600 picofarad parallel plate capacitor A is charged to 200 volt. After some time, it is disconnected from the supply and connected to another uncharged similar capacitor of 600 picofarad. Plates of capacitor P are pulled apart. ठीक है, ये छोड़ो. हम ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं. So this question is basically एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा अनचार्ज. A capacitor is charged C is charged by V volt battery and then disconnected from the circuit. Disconnected from the circuit and now it is connected to another identical. It is connected across an identical capacitor. Question is calculate the percentage of energy lost. Calculate the percentage energy lost in the system. C का कैपेसिटर है, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है. When it has a charge Q, that Q is equal to CV. This is disconnected from here. और अभी हमने इस कैपेसिटर को एक दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया. Both are same capacitance, so that means the charge will be equally divided, Q by 2 and Q by 2. Initially it has only one charge. Initially it has only one capacitor having the charge, another was uncharged. And here it is final. सिस्टम में इनिशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है. इनिशियल एनर्जी इज Q square by 2C. Final energy is Q by 2 square by 2C multiply by 2. Why multiply by 2? Because now both the capacitors have same amount of charge, they have the same energy. Right? बेटा समझ आ रहा है? Charge Q gets divided into the two equally because both the capacitors are same. So final energy आ गई Q square by 4C. Initially it has energy Q square by 2C. Now it has energy Q square by 4C. Percentage of energy lost. Percentage energy lost is initial minus final divided by initial multiply by 100%. आएगा ये? Yes, what is the percentage of energy lost? What percentage of energy is lost?
log initially q square by 2c, finally q square by 4c divided by q square by 2c into 100. क्या है आंसर इसका? 50%. कितना? 50%. 50%. So 50% of energy will be lost अगर हम एक कैपेसिटर को उसी के जैसे एक दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें. वेरी नाइस. नेक्स्ट, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सर्किट नॉर्मल जैसा ही होगा या क्वेश्चन नॉर्मल जैसा ही है, बट थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होने की वजह से उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इट्स इनर सरफेस इज अर्थ. हमने अभी तक जितने कैपेसिटर यूज किए थे सब में आउटर सरफेस को अर्थ किया. Calculate the capacitance of this spherical capacitor when the inner shell is earth. Calculate the capacitance of a spherical capacitor when inner shell is earth. क्या फर्क पड़ेगा अगर हम बाहर की जगह अंदर करते हैं तो? डिफरेंस क्या था? हमने बाहर की तरफ अर्थिंग क्यों की थी वैसे याद है किसी को? वाई वी डू अर्थिंग ऑन द आउटर सरफेस, ताकि बाहर की तरफ कोई चार्ज ना हो. और बाहर की तरफ चार्ज क्यों नहीं चाहिए हमें? क्योंकि अगर बाहर चार्ज होगा तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वो एनर्जी उसके सरफेस से लेके इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. काइंड ऑफ वेस्टेज, और यू कैन से दैट कैपेसिटेंस बिकम इनफाइनाइटली लार्ज. अभी क्योंकि हमने अंदर वाले को अर्थ किया है, तो इधर Q माइनस Q बाय इंडक्शन बाहर वाले साइड पे उतना ही प्लस Q भी आ जाएगा. बाय इंडक्शन अगर अंदर की तरफ माइनस Q आएगा तो बाहर वाले सरफेस पे उतना ही प्लस Q भी आ जाएगा. जब जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इट स्टोर्स एनर्जी. सो इन बिटवीन तो था ही, जो पहले के जैसा ही है एग्जैक्टली. नाउ देयर इज वन मोर रीजन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस and going till infinity like a isolated sphere. So ultimately in this scenario there are two capacitor formed. एक तो वो है जो दोनों प्लेट्स के बीच में है, दोनों शेल के बीच में है, और दूसरा वो है जो इस बाहर वाले सरफेस के बाहर है. There are two different capacitor now. One is in between these plates, another one which starts from the outer surface to infinity. बेटा ये समझ में आ रहा है यहाँ पे दो कैपेसिटर क्यों है? Why there are two capacitors? क्योंकि दो अलग अलग रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द गैप और बाहर की तरफ भी. क्लियर? इसमें जो अंदर वाला कैपेसिटर है वो तो वही है नॉर्मली जो हमने पढ़ा था.
4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2 minus R1. B is the outer radius, A is the inner radius. और जो बाहर कैपेसिटर बन गया C2, that is the isolated capacitor, isolated sphere, जिसका फॉर्मूला था 4 pi epsilon naught B, 4 pi epsilon naught R, and R is equal to B here for the outer one, right? ये दो कैपेसिटर सीरीज में अज्यूम करेंगे या पैरेलल में अज्यूम करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन. These two capacitors are there. इन दोनों का जो overall resultant आएगा, that resultant equivalent capacitance will be the capacitance of this circuit. Right? बेटा समझ आ रहा है किसी को? कुछ खाना बोल दो, एक्सप्लेन करूं मैं फिर से अगर नहीं आ रहा तो. जब हम बाहर वाले को अर्थ करते थे तो ये बाहर का चार्ज ग्राउंड में चला जाता था. देयर इज नो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन द आउटर सरफेस. जब अंदर की तरफ शेल के अर्थ किया तो बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज आएगा, उस चार्ज की आपकी एनर्जी होगी. सो देयर विल बी टू डिफरेंट रीजन व्हिच कंटेन्स एनर्जी एंड both of them will be considered in series or parallel. That's my question. ये C1 C2 को हम सीरीज में कंज्यूम करेंगे या पैरेलल में अज्यूम करेंगे, कैसे? यस. कैसे पता करेंगे सीरीज या पैरेलल में? अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सीरीज में. सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि इस प्लेट का पोटेंशियल है V, आउटर शेल का, अंदर वाला अर्थ है इसलिए इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, और दूसरा वाला इंफिनिटी पे जाता है. एट इंफिनिटी ऑल्सो पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो. सो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, V माइनस जीरो, V माइनस जीरो, पोटेंशियल सेम. Potential difference across both the capacitor is same, so they can be considered in parallel. Hence, they are considered in parallel. समझ आ नहीं रहा शायद किसी को भी. बेटा अनुराग, हाँ जी सर. समझ आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा तो फिर से अच्छा. ये क्वेश्चन नॉर्मल वाला नहीं है. नॉर्मल स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हम सिर्फ इतना लिखते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, खत्म. केवल एक सिंगल स्फीयर होता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इन दिस रीजन, बिकॉज हमने आउटर को नहीं, हमने गलती से इनर को अर्थ कर दिया है, सो there will be energy starting from the surface also outside surface. Because of that, there are two different reasons which contains energy, and because of which these two will be connected. अब इन दोनों को पैरेलल में क्यों अज्यूम किया? बिकॉज दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. ओके. C1 प्लस C2 ऐड कर लो. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B. फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, AB divided by B minus A plus B. 4 pi epsilon naught AB plus B square minus AB divided by B minus A. AB gone. This is the capacitance of the spherical capacitor जब हम बाहर की जगह पे अंदर वाले को अर्थ कर देते हैं.
राइट? यस सर। यार बाकी लोग क्यों नहीं बोलते, समझ नहीं आ रहा है। सक्षम, मानव, मानव, इज इट क्लियर? Yes, sir, clear. It's clear. सर ये बोर्ड्स में पूछ सकते हैं? नहीं बेटा, बोर्ड में तो नहीं है, ये कंप्यूटर लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड पे चांसेस आर रेयर, थोड़े कम ही चांसेस है। ठीक है, सो आई थिंक नेक्स्ट रेस्ट आप जितने भी क्वेश्चंस है डीपीपी के वो ट्राई करेंगे। आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट। नाउ वी कैन स्टार्ट चैप्टर 3 व्हिच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्लास 10 में पढ़ चुके हैं वैसे, एंड करंट को हम थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। डिफरेंट मतलब एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज द चार्ज दैट वी हैव अंडरस्टूड? चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं, the flow of charge is defined as current. When the current flows, it is defined as करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब करंट सिर्फ चार्ज के फ्लो से वी डज नॉट डिफाइन, बिकॉज अगर चार्ज फ्लो हो रहा है बट इट इज नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, लाइक इट इज मूविंग रैंडमली, तो हम उसको फिर हम करंट इंक्लूड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट दैट एज अ करंट। सो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट is defined as the net amount of charge that is crossing an area on some particular area। कितना चार्ज इसको क्रॉस कर रहा है per unit time, that will be defined as electric current। So the rate of flow of charge or the amount of charge, the amount of charge crossing through an area per unit time। Per unit time is defined as electric current। Right? Okay. So ये सपोज कोई भी वायर लेते हैं, अगर करंट कुछ भी रैंडमली चार्ज मूव करे तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। If that charge is crossing certain area, though area is not required anywhere, इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें लिखना होता है चार्ज पर इन टाइम। दिस इज द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इन टाइम t। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इन टाइम t, I is equal to q by t। एवरेज करंट क्यों? क्योंकि ये किसी एक टाइम इंटरवल पे है। अभी इसमें एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, बट हम डायरेक्शन के लिए या हम रेफरेंस के लिए किसी एरिया को यूज करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम। वो एरिया कितना बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इट हैज टू क्रॉस दैट एरिया। इफ इट इज नॉट क्रॉसिंग द एरिया, वो मूवमेंट है बट इट इज नॉट क्रॉसिंग दैट, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा रहा, देन वी कैन नॉट कंसीडर दैट, we cannot consider that to be producing a current। I is q by t or delta q by delta t in a time interval of delta t, coulomb per second or ampere। It is a scalar quantity but still it has a direction। current की direction होती है and that direction of current is taken as chosen as reference। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, that direction is assumed as the direction of electric current।
right? Electric current is a scalar quantity, but it has a direction. There is a direction of electric current by convention is assumed as the direction of flow of positive charge or opposite to the flow of negative charge. Direction of electric current is taken as in the direction of flow of positive charge or opposite to the flow of negative charge. Or opposite to the flow of negative charge. It has no logic involved. This is just a convention. अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं, लाइक द इलेक्ट्रोड्स, आयंस या फिर गैसेस इलेक्ट्रोड, उसमें करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की फ्लो में. एंड इफ सपोज वी टेक अबाउट मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. So in this case, the direction of electric current will be in opposite direction. This is a convention. There is no logic associated with it. Current is a scalar quantity, and the reason we can write is that समझने के लिए तो ये reason है that because electric current की direction already decided है by convention, it cannot choose any random direction. It cannot take any random direction. उन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है जिनमें कोई भी रैंडम से डायरेक्शन हो सकती है. देन वी नीड टू स्पेसिफाई दैट व्हिच डायरेक्शन इट इज गोइंग और व्हिच डायरेक्शन इट इज देयर. बट करंट की डायरेक्शन तो हमें नहीं बताना क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है. देयर कैन बी ओनली वन डायरेक्शन. इट कैन नॉट चेंज, सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई दैट डायरेक्शन. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली. करेक्ट. स्केलर क्वांटिटी और उसका रीजन हम लिखेंगे बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. It does not follow the law of vector addition. वेक्टर एडिशन लॉ क्या था? अगर दो वेक्टर्स आके किसी थीटा एंगल पे मिलते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इधर से 3 एम्पियर की करंट, इधर से 4 एम्पियर की करंट, so it doesn't matter, it will always be 7 ampere only. The current will be added algebraically. There is no vector summation. This angle theta does not matter whatsoever with that angle. Current is always going to be 7 ampere. Right? Understood? It does not depend upon theta, and that is why it is not a vector addition. Okay, sir. Pavni, you joined late or you are from the beginning? Pavni? Okay. She is not here. Okay. करंट फ्लो करना मतलब चार्ज किसी एरिया को क्रॉस करे. अब वो चार्ज कैसा भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी नेगेटिव चार्ज, प्लस इट कैन बी इन सॉलिड लाइक मेटलिक वायर. So मेटल में कौन चार्ज फ्लो करता है? मेटल में कौन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रॉन. In the metal current flows due to electron. So अलग अलग टाइप के मटेरियल में different type of charge carriers are present,
and due to which current flows. Average electric current is total charge passed divided by total time. अगर हमें charge function पता हो as a function of time t, then it will be instantaneous current. Instantaneous current is the rate of flow of charge at an instant through an area. किसी एक area को cross करने में हम instantaneous rate of flow of charge is defined as instantaneous current, and for this we require charge as a function of. For this we So- require. हाँ बेटा, सर और करंट कैरियर्स क्या होते हैं या सिर्फ एक ही होता है? एक चार्ज कैरियर्स होते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल में. जैसे कंडक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, there will be different type of conductors, like water is also conductor, human body is also conductor, metal is also conductor. So they all conduct electricity, but the charge that conducts electricity is different. We'll see one by one. Don't worry. जैसे अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया मैंने. In the case of electrolytic solution, metal के अंदर मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ions, cations as well as anion both move. And in the case of gaseous ion किसमें होते हैं? ट्यूबलाइट में और डिस्चार्ज ट्यूब में. In the vacuum tube, gas tube और ट्यूबलाइट, इसमें गैस के आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. So the different type of material, different charge carriers are there. तो हम जब भी करंट कैलकुलेट करेंगे, we have to take care of current due to all of them. Manav, Yes sir, understood. if we are calculating the current in electrolytic solution, electrolytic solution में current दो वजह से होगी, because of cation as well as anion. मूवमेंट ऑफ चार्ज चाहे पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, दोनों से इलेक्ट्रिक करंट होती है. और ये तो गलती से आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच वी हैड. या इलेक्ट्रिक करंट जो हम बात कर रहे हैं अभी बाय डिफॉल्ट मेटल की बात कर रहे हैं, बट हम आगे और भी चीजों में पढ़ेंगे. जैसे गैस में, सेमीकंडक्टर में करंट, मेटेलिक वायर्स के अलावा जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट, वैक्यूम ट्यूब में करंट, इंस्टेंटेनियस करंट. सो there are different charge carriers. In the different charge carriers are required for flow of current. मानव किसी वायर में, सॉलिड वायर में, मेटलिक वायर में करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? I mean, where does the electron? Why this is only in metal or conductor? सर एटम से. मतलब किसके एटम से? Okay, another question, another version of the same question. इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स, सपोज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट. सो मेटेलिक वायर पे नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा? करंट कैरिंग वायर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिव. सर न्यूट्रल होगा. सर न्यूट्रल. तो सक्षम हो रहा हूँ न्यूट्रल. अरे वो तो मैं पहले बता चुका हूँ सक्षम. पहले ये मैंने मानव से पूछा था वैसे. यस, ओके. तनिष्का, आपने बोला शायद पॉजिटिव. यस सर. व्हाई पॉजिटिव? सर क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है इसमें. हाँ, गुड. लूज होने की टेंडेंसी होती है, एंड दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल से बाहर आ गए, मेटल के एटम से बाहर आ गए. एवरी कंडक्टर या मेटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एटम्स में होते हैं, और जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज लूजली बाउंड, वो निकल के बाहर फ्री हो जाता है, बिकॉज मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है. तो जो मेटल एटम था वो हमेशा आयन के फॉर्म में रहता है. सपोज अगर ये कॉपर है तो इसमें कॉपर होगा कॉपर प्लस के फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर
भटकता रहता है, that electron is called free electron. Every metal atom has very low ionic energy, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है by the very small amount of energy acquired even by the room temperature. रूम टेम्परेचर 27 डिग्री 25 डिग्री लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और उसकी वजह से हम ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसकी इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी दैट इज द गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूविंग बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर. इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हो रहा है एंड दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस द करंट. ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? किसी मेटल एटम से निकल कर ही आए. ये बाहर किसी दूसरे एटम के नहीं है, किसी दूसरे मटेरियल के नहीं है. All these free electrons are due to the ionization of some of the atom जो इसके अंदर है, और वो एटम अब पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, लेकिन वो मूव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपने लैटिस में फिक्स है. देयर आर फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, क्योंकि मेटल है, मेटल में सारे एटम की पोजीशन फिक्स्ड होती है अपने अपने लैटिसेस में, कैन नॉट मूव रैंडमली. बट जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, दैट इलेक्ट्रॉन हैज फ्रीडम, दैट इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज नाउ मूविंग. दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. तो क्या आएगा टोटल चार्ज तनिष्का? व्हाट शुड बी द टोटल चार्ज ऑन द वायर देन? इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतने के बराबर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है. सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आल्सो कम्स, and that means overall it will be neutral. So every current carrying wire जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा न्यूट्रल होता है. इसका मतलब उसमें से जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज भी है. ओके सर. So अगर करंट फ्लो हो रही है, that does not mean it is negative charge, it will be neutral. So current carrying wire is always neutral. फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के आते हैं और जो अंदर अपने ऑर्बिट में रहते हैं, जो रिवॉल्व होते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. करेक्ट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द मेटल वायर. इसलिए हम मेटल में बोलेंगे चार्ज कैरियर कौन है? फाइन. इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड. क्यों? क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. नो, मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एज चार्ज कैरियर. बट दैट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पे जितना नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा ऑन द कंसेक्यूटिव एटम्स, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन भी प्रोड्यूस हो जाएंगे. बट इट इज नॉट मूविंग. वो मूव क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज फिक्स्ड. राइट? ओके सर. अब मेटल के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट निकालते हैं तो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मूव्स इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक वायर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू इज टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कौन लेके जाता है यहाँ पे? फॉर लाइक विच इज द चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम इसको लिखते हैं, सपोज किसी एरिया के थ्रू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं टाइम t में, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस, total charge that crosses is ne divided by time taken is t. Capital N is the total number of electron that crosses an area in time t. Total number of electrons crossing an area in time t. Right? N upon t को क्या लिख सकते हैं? N upon t is
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। जब मेटल के लिए ओनली दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर मेटल, क्योंकि मेटल में ही केवल इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर। करंट विल बी स्मॉल n टाइम्स E. Small n is number of electrons crossing per unit time through an area. Number of electrons crossing per unit time through an area. And E is charge of the electron, that 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Right? Only for metal. Metal में electrons केवल move करते हैं charge. So that means the current will be due to the flow of electron. Small n is the number of electrons crossing per unit time multiplied by charge on the electron. तो कैपिटल एन क्या है? Capital N total number of electrons थे. Suppose ऐसा लिखा है 10 सेकंड में 1.9 to 10 to the power 23. N is the total number of electrons crossing in time t. Total number of electrons crossing in time t. Small n क्या है? Total number of electrons crossing in 1 second. एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे दैट इज स्मॉल n. सो दैट इज वन फॉर्मूला दैट वी कैन यूज, बट दिस इज ओनली फॉर मेटल, क्योंकि मेटल में ही केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. अदर सिनेरियोज में देयर माइट बी अदर टाइप ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट. सेकंड, यस सर आपने बोला कि ये सिर्फ मेटल के लिए है, लेकिन नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट है सर, तो उसमें कौन होता है चार्ज कैरियर? अभी आते हैं बेटा, उसी पे आ रहे हैं. अभी तो पहले ये Sir? समझ कंडक्टर वाले. यस मैन. सर कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता. मैं तो सिर्फ करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं. वो तो उसको खुद Okay, का sir. एनर्जी दोगे तो वो चार्ज हो जाएगा. मेटल Okay, sir. मेटल को लेके रबर से या किसी भी सिल्क से रब कर दो, इट विल हैव चार्ज ऑन इट. बट वो जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे बाहर रहता है. दैट इज द स्टैटिक चार्ज जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. नाउ दिस चार्ज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज inside the metal, and it is moving inside because it is produced by the ionization of some of the atoms present inside. Okay, sir. ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर से नहीं है. These electrons are the part of the atom inside, and therefore net charge still will be zero, क्योंकि जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, exactly same amount of positive charge will also be present in the ions. Right? तनिष्का, understood? यस सर. Okay. अब समझते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. उर्वशी, यस सर. क्लियर? यस सर. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या वाटर ले लो या ह्यूमन बॉडी ले लो, सब में एक ही कहानी है. वाटर इज ऑल्सो. वाटर में कौन सा वाला वाटर कंडक्टर होता है? ये हम क्लासिफिकेशन पहले चैप्टर में कर चुके हैं. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग हियर. व्हेन वी क्लासिफाई द मेटल देयर आर 3 क्लासिफिकेशन. कौन कौन सा था? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर. और इंसुलेटर में ही हम एक स्पेशल नाम देते थे कुछ स्पेशल टाइप वाले इंसुलेटर को. वी कॉल इट डाइलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लाइक इनसाइड द बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल एनोड, बीच में जो सोल्यूशन होता है दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इस सोल्यूशन में दो तरह के आयन होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और दोनों फ्री हैं. दोनों के पास फ्रीडम है मूव करने के लिए. सपोज अगर हम सोडियम क्लोराइड लें तो Na प्लस एंड Cl माइनस. सोडियम जाएगा नेगेटिव की तरफ और क्लोराइड जाएगा
पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. In this case, both cation and anion conducts the electric current. cation की वजह से भी और anion की वजह से भी. So the total current हम निकालेंगे, that current will be due to positive plus negative. अब though they are moving in opposite direction, electric they are moving in opposite direction, but उनकी जो current आएगी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट लेते हैं और नेगेटिव ही करंट नेगेटिव के अपोजिट लेते हैं. तो नेगेटिव जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी करंट भी आ जाएगी सेम डायरेक्शन में, आई ऑफ सेल माइनस. Though the cation and anion move in opposite direction, but their current will be in same direction, and therefore it will be added. I of sodium ion plus current due to chloride. Sodium chloride केवल एक एग्जांपल लिया मैंने. जितने भी मेटल, जितने भी सोल्यूशन होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उसमें हमेशा उनके आयंस के फॉर्म में वो फ्री हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दोस फ्री आयंस अवेलेबल, mobile ions, movable ion present in the electrolytic solution, it conducts. Right? बेटा ये एग्जांपल समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Cation and anion both are conducting. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट दोनों की जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगी. करंट सेम डायरेक्शन में आएगी तो हम दोनों को ऐड करेंगे, और फिर इसके लिए हमें दोनों में दो बार अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एक बार पॉजिटिव चार्ज कितना क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम, और फिर नेगेटिव चार्ज कितना क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम. सोडियम आयन के लिए it will be n1 times E, where n1 is number of sodium ions crossing per unit time. So I chloride ion will be n2 times E. ये दोनों में E क्या है कि सोडियम प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही चार्ज है, though it is positive, where n2 is number of chloride ions crossing per unit time. So total current will be n1 times E plus n2 times E, which will be n1 plus n2 times E in the case of electrolytic solution. Competitive level पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम taking them separately one by one, case by case. Solid metal के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही था जो कंडक्ट कर सकता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में it is cation as well as anion, both conducts. दोनों की इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे. They move in opposite direction, but their current comes in the same direction. पहला था मेटल. So अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उन सब में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. हमारी ह्यूमन बॉडी में भी करंट क्यों फ्लो पाती है? बिकॉज ऑफ द ब्लड. ब्लड में क्या है? ढेर सारे आयंस. That is why our body is water and mineral water and blood. There are a lot of salts in the body, sodium, potassium, and that's why it is a very highly conducting. अब आते हैं गैस के केस. ग्रेफाइट में क्या कंडक्ट करता है? वो वंडरवॉल फोर्सेस दोनों लेयर्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता रहता है. So that electron which will be slipping between which will be oscillating between the two layers in the graphite, and that moment also produces or considered as the electric current. समझ गए? तनिष्का, आपने ग्रेफाइट का एग्जांपल पूछा था शायद. Yes, sir. थर्ड आते हैं इन वैक्यूम ट्यूब और इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब जो हम पहले यूज करते थे ट्यूबलाइट, नॉट द न्यू वंस. अभी तो एलईडी यूज करते हैं. एलईडी इज सेमीकंडक्टर डिवाइस. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड वन, सिलिंड्रिकल वाली जो आती थी पहले. अभी तो थोड़ी क्यूबॉइड शेप में आने लग गई है. दैट्स एलईडी. ऐसे कुछ वैक्यूम ट्यूब मतलब इसमें अंदर वैसे तो वैक्यूम कहने के लिए है, इसके अंदर क्या रखते थे हम? हीलियम या फिर नियॉन या फिर नाइट्रोजन गैसेस.
depending upon, and there are 2 electrodes. This is the normal tube light जिसमें हम इसको अभी तक हम यूज करते थे. Tube light is better than the normal bulb. बल्ब में यूज करते हैं वायर, टंगस्टन वायर. टंगस्टन वायर में हीट प्रोड्यूस होती है और हीट से उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है. ट्यूब लाइट में क्या होता है, अंदर गैस एटम्स, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से वाली ट्यूबलाइट है, कितनी महंगी है, कौन सी कलर की है, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे हम इसमें बाहर से कोई एनर्जी देते हैं, एनर्जी कैसे देते हैं, बैटरी पोटेंशियल लगा के, उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो बन जाएगा एक गैस का पॉजिटिव आयन. बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड, एनर्जी जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, गैस एटम्स में आयोनाइजेशन आ जाता है और आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और गैस के आयन बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस. पहले ये एटम के फॉर्म में था, जब तक हमने इसमें कोई एनर्जी नहीं दी, देयर इज नथिंग कनेक्टेड, इट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस एटम्स. एनर्जी देने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए और इस एटम के अंदर पॉजिटिव गैस आयंस बन गए, पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव गैस आयंस. बोथ ऑफ देम आर नाउ फ्री. मेटल के केस में प्रॉब्लम क्या थी, मेटल केस में प्रॉब्लम थी दैट इलेक्ट्रॉन्स ओनली कैन मूव, और वो भी मूव ज्यादा नहीं कर सकते कि जैसे ही मूव करेंगे सॉलिड की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी क्लोज कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है कि वो कोलाइड करके रुक जाएगी. This is gas ion, positive ion. Both conducts. इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो ये इधर मूव करेगा. अगेन देयर करंट विल कम इन द सेम डायरेक्शन. डिस्चार्ज ट्यूब में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, गैसियस आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. Ionized gaseous state is also called as plasma state. So इसके अंदर जो मैटर है वो kind of plasma state में होता है. Conduction is very easily possible as compared to the solid metal. But problem क्या है, कुछ टाइम के बाद सारी की सारी गैस खत्म हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, it will not come back, it will not get neutralized. इसलिए ट्यूबलाइट कुछ टाइम के बाद थोड़ी खराब होने लग जाती है. ओल्ड ट्यूबलाइट्स बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उन ट्यूबलाइट्स की जो पहले आती थी, नॉट द न्यू वंस. नाउ इट इज एलईडी बैटरीज. करेक्ट. ओके सर. तो हियर इलेक्ट्रॉन्स प्लस गैस आयंस, इलेक्ट्रॉन्स भी इजिली मूव करेंगे, गैस आयन भी इजिली मूव करेंगे, बिकॉज बीच में क्या है, कुछ नहीं है, वैक्यूम काइंड ऑफ थिंग. सॉलिड में इलेक्ट्रॉन चलना तो चाहते हैं लेकिन चलते रुक जाते हैं. क्यों, क्योंकि इतना हाईली डेंस मटेरियल है, इतना हाईली कॉम्पैक्ट मटेरियल है दैट हाईली कॉम्पैक्ट मटेरियल है दैट इट कैन नॉट मूव. जैसे मूव करेगा वैसे रुक जाता है. ये हमने अभी एक जनरल टर्म पढ़ लिया, क्योंकि क्या द टाइप ऑफ particles which are responsible for the movement of current or the movement of charge is different from अभी जो नई जो टेक्नोलॉजी है, नई रिसर्च में हम OLEDs पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एलईडीज. इसमें तो ना इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना आयन मूव करते हैं. उसमें क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे बेंजीन में होती है 6 रिंग के बीच में 6 एटम्स के बीच में, वैसे कुछ. सर वो हमारे मतलब का नहीं है अभी, दैट इज द ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, नॉट इन आवर सिलेबस, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं. करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट्स इट. लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए, किसी एरिया को क्रॉस करके दूसरे साइड जाना चाहिए. ओनली देन वी कॉल दैट फ्लो टू बी प्रोड्यूसिंग करंट, टू प्रोड्यूस करंट. अगर वो घूम फिर के वहीं पे आ जाए या राइट में जाए फिर लेफ्ट में आ जाए, then that random motion will not produce any kind of current, और उसकी वजह से करंट नहीं होती, जैसे कि मेटल वायर में होता है जब तक कि हम बाहर से कोई बैटरी ना लगाए तब तक. So now we will see in detail
Now we'll see in detail the metal or the electric current through the metallic wire. Before that, we'll do some questions. Current is rate of flow of charge. अगर हमें total charge पता है, total charge flowing in time t, then we use average, this formula for average electric current. अगर हमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो हम इसको डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी इंस्टेंटेनियस करंट. राइट. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज अगर निकालना होगा, टोटल चार्ज पास, अगर करंट कांस्टेंट है देन I into t. Total charge passed through an area in time t. Total charge passed through an area in time t. If current is variable, if current is changing with time, तो हम करंट को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में. If current is changing with time, और इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? What does integration represent in graph? Integration represent area under the graph. So अगर हम किसी भी current versus time graph के अंदर का area निकाल लें, then we will find the total charge passed in time t. Done. So हमने क्या डिस्कस किया? करंट अभी हम एक एक करके मेटल के लिए पढ़ेंगे अभी in this chapter, and then we will see separately for the semiconductor, the semiconductor unit. Right. Current is the rate of flow of charge. एरिया से कोई मतलब नहीं है, बट एरिया को हम यूज करते हैं to define that any area the charge should cross, only then it will be considered to be electric current. If it is not crossing, moving parallel या cross करके फिर वापस आ जाए, then that does not produce any kind of current. Right? ठीक है. So if charge is a function of time, like Q is given as, if charge crossing through an area in time t, is given by Q is equal to 2t cube plus 3t square plus 4t. Find the average current in time 2 seconds. And instantaneous current at time t is equal to 2 seconds. तो पहले हमें एवरेज बतानी है कि 0 से 2 सेकंड के बीच में कितनी चार्ज फ्लो हो रहा है, और फिर हमें बताना है कि एग्जैक्टली एट t is equal to 2 सेकंड कितनी करंट फ्लो हो रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. Total charge crossing 2t cube plus 3t square upon 4t divided by time taken.
उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चार्ज कैलकुलेट करना है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। एवरेज करंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड में जो टोटल चार्ज पास हो रहा है उसको हम यूज करेंगे चार्ज के फॉर्मूले से, विच इज गिवन हियर। The formula of charge as a function of time is given. From that formula we can find out how much charge is passed through an area in time of 2 seconds. So formula क्या था, 2t cube, formula was 2t cube plus 3t square plus 4t. So 2t cube plus 3t square plus 4t, इस फॉर्मूले में t को 2 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 2 सेकंड। So 16 plus 12 plus 8 divided by 2, सर 18। 36 by 2, 18 एम्पियर। 18 एम्पियर की एवरेज करंट फ्लो हो रही है फर्स्ट 2 सेकंड में। राइट, अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t, और डिफरेंशिएट करके फिर इसमें हम पुट कर देंगे t को 2, 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, substitute t is equal to 2, substitute t is equal to 2 in this. (24 plus 12 plus 4), right? 40 ampere. यस सर। 40 ampere. Average current first 2 second में 18 ampere. Instantaneous current exactly at time t is equal to 2 second is 40 ampere. Right. ठीक है। So I am taking few questions from the book. In a closed circuit, next question. In a closed circuit, the current at time t is given as I is equal to 4 minus 0.08 times t. Four minus 0.08 t. Find the number of electrons crossing an area. Find number of electrons
Find the number of electrons crossing per number of electrons crossing through an area from t is equal to 0 to t is equal to 50 seconds. Current is given, charge calculate करना है, charge will be function of time, charge is integration of Q is equal to integration of I dt, limit from 0 to t. Integration of 4 minus 0.08 t into dt, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे 0 to 50 से. Okay, integrate this from 0 to 50, that will be the total charge passed. This will become 40 Q 4 current T minus 0.08 T square to limit from 0 to 50. ये तो आ गया चार्ज 100 कूलम. अब हमें पता करना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. सो Q is equal to Ne से N is the number of electrons that is crossing. We have to find the number of electrons per second that is crossing. So, Yes. सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने दिया था उसमें जो एवरेज निकालना था, अगर सपोज वो फर्स्ट 2 सेकेंड्स नहीं 2 सेकेंड से 4 सेकेंड होता तो इंटीग्रेट करते रहे. 4 माइनस नहीं, इंटीग्रेट नहीं करते, हम सब्ट्रैक्ट करते. ओके सर. उसमें हम t is equal to 4 का निकालते हैं, माइनस t is equal to 2 का निकालते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड बाय 2 करते. सो यहाँ पे Q आ गया 100 N into 1.6 10 to the power minus 90. ठीक है. Okay, so we'll continue from here next class. Thursday, in the Friday class, take all of the DPPs, complete all the DPPs from the capacitor part and then we will discuss on Friday. ठीक है, चलो ओके बेटा, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर. Yes, sir.